Hello friends, I welcome all of you on the Fast Track Defense channel. In this video, we are covering the part 2 of your current affairs which we had started a few days back. You all are aware that your NDA 2 2022 and CDS 2 2022, both the examinations are going to held on the same date of 4th of September. And you know the importance of current affairs in both the examination. Around 12 questions are asked in your NDA examination and around 20 questions are asked in your CDS examination. And I can guarantee you that in your NDA examination, out of the 12 questions, if you miss even a single question, then you can stop watching our this current affairs series. Last time when this NDA examination was held on 10th of April, NDA 1 2022, around 11 questions came from the current affairs, and out of 11, 10 questions were there from this series only. So last year also I have started the same series. For NDA 1 2022 I have also started the same series, and now for NDA 2 2022 also I am starting the same series, and today is the part 2. In this part 2 we will cover the complete current affairs of May 2022, and in this May 2022 we are going to see the national events and current affairs. Firstly, we are going to cover all the national issues which has taken place across our nation, starting from the state of Jammu and Kashmir to the state of Tamil Nadu, in the north to south, and from the west to east. Entire current affairs is going to be covered in this national events. And if you talk about this, we have the second part of this, that is in second part we are covering the international events and current affairs, and in this we will cover all the international events, sports events, or any kind of meeting by various countries, various organizations, everything is going to be covered. So this complete series is going to be very much helpful, and I can completely bet you that if you watch this series, your 12 questions in your NDA exam will be of very much helpful. It will you will be able to solve all the questions in your NDA examination. So अब without wasting any time अब हम स्टार्ट करते हैं, और जो आज का वीडियो होने वाला है ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, बाइलिंगुअल होने वाला है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन. जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नेम द पॉपुलर प्लेबैक सिंगर ऑफ बॉलीवुड हु पास्ड अवे ऑन 31st of May 2022. 31 मई को आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के एक सिंगर हैं जो कि काफ़ी फेमस थे, बॉलीवुड में इनका काफ़ी सॉन्ग भी है. इनको शॉर्ट में के बोला जाता है, कृष्ण कुमार कुमंत, हिज फुल नेम ऑफ के. सो आपको ये पता होना चाहिए के वहाँ पे एक सिंपली ऑप्शन दे देगा, कई सारे सिंगर्स का नाम दे देगा, और वहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर डाइड रिसेंटली ऑन 31st of May 2022. In that case you have to remember the short name, just remember the short name, that is के. आप अगर इसका फुल नेम भी देखेंगे कृष्ण कुमार कुमंत, तो आप उस केस में के से आप वहाँ पे समझ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी फिलहाल अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने यूपी लेखपाल का एग्जाम दिया होगा. यूपी लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखा गया था. सो आपके जो आगे आने वाला एग्जाम है, आपके सीडीएस एग्जाम, एनडीए एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ये काफ़ी न्यूज़ में है. तो बेसिकली द क्वेश्चन इज, name the novel by Gitanjali Sri which has become the first Indian novel to win the prestigious 2022 International Booker Prize. International Booker Prize is given in the field of literature, और इस बार जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए दिया गया है फॉर द नॉवेल टॉम ऑफ सैंड. टॉम ऑफ सैंड की जो लेखक हैं, मतलब द राइटर ऑफ टॉम ऑफ सैंड इज गीतांजलि श्री. ये आपको पता होना चाहिए. सो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गॉट इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022, और वहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे. तो यहाँ पे आपको इनका नाम, ये जो गीतांजलि श्री है इनका नाम, और इनके जो जो बुक लिखा गया है, ये बुक का नाम टॉम ऑफ सैंड, दोनों आपको मालूम होना चाहिए. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from the sports. Sports plays a very much important role. You all are aware that recently India has performed outstandingly well in the Commonwealth Games which was held in Birmingham, with winning 22 gold medals. We are at the 4th position, immediately behind Canada. So it is a very outstanding performance, और आपको इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा. जब हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो उस केस में मैं आपको कंप्लीट जो आपका ये कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कवर करवा दूंगा. तो बेसिकली जो अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, विच फ्रेंचाइज वन द टाइटा IPL 2022 by defeating Rajasthan Royals by 7 wicket to win their debut IPL tournament. So here they are asking वो कौन सा IPL टीम है जो टाइटा IPL, मतलब जो 2022 का IPL हुआ था, उसका विनर कौन है. देन द टीम इज गुजरात लायन, कैप्टन वाज हार्दिक पांड्या. अब बेसिकली आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपको इस
इसका आंसर वीडियो के कमेंट में देना है। हु वन ऑरेंज कैप इन IPL 2022 और ऑरेंज कैप के साथ हु वन पर्पल कैप इन IPL 2022। ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, संभावना है, बट आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ इम्पॉर्टेंट। हु वन द पर्पल कैप, आपको पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों का आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। सो पर्पल कैप ऑफ टाटा IPL 2022 आफ्टर टेकिंग ए टोटल ऑफ 27 विकेट्स इन 17 मैच। 17 मैच में 27 विकेट लेने के लिए यजुवेंद्र चहल को मिला है आपका पर्पल कैप। अब आपको कमेंट में बताना है कि यजुवेंद्र चहल किस IPL टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द ऑरेंज कैप इन टाटा IPL 2022 फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट रन दैट इज 863 रन इन द टूर्नामेंट, देन ही इज नन अदर दैन जोस बटलर हु प्लेज फ्रॉम द कंट्री ऑफ इंग्लैंड। अब आपको बताना है कि ये जो जोस बटलर हैं, ये जोस बटलर IPL के किस टीम से खेलते हैं। जोस बटलर के बारे में आपको बताना है और यजुवेंद्र चहल के बारे में भी आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि किस टीम से ये दोनों प्लेयर खेलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at which स्टेडियम इन अहमदाबाद फाइनल टाटा IPL 2022 वाज हेल्ड। जो आपका टाटा IPL 2022 का फाइनल मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ऑब्वियसली जो हमारे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, यहीं पे हुआ था। इसकी कैपेसिटी मोर देन 1 लाख है। सो इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट का स्टेडियम, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है। वहीं पे टाटा IPL का फाइनल मैच हुआ था। अब आपको बताना है कि टाटा IPL जो हुआ था वो किसके बैच में जो फाइनल मैच हुआ था। एक तो आपको पता है कि गुजरात लायंस जो कि जीत गया था। ये गुजरात लायंस के ओपोनेंट कौन था, आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि ये जो लेवेंडर फेस्टिवल है, ये लेवेंडर फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है, जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है और ये जो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था ये पर्टिकुलर फेस्टिवल, ये जो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है भादेरवाह इन जम्मू एंड कश्मीर। ये प्लेस का नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली पूछ देगा कि लेवेंडर फेस्टिवल किस स्टेट फेस्टिवल है या फिर किस स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देन इन दैट केस योर आंसर इज स्टेट ऑफ, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हियर नाउ इट इज नॉट अ स्टेट बट नाउ इट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम आपको यहाँ पे दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप डिफेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, NDA का एग्जाम, CDS का एग्जाम। सो ये क्वेश्चन तो आपको श्योर शॉर्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये भी फिलहाल ये काफ़ी न्यूज में था। सो हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मीज फर्स्ट कॉम्बैट पायलट। जो आपको पता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और जो आपका एयरफोर्स है, तीनों का सेपरेट जो एविएशन का ब्रांच होता है, तीनों का सेपरेट एविएशन ब्रांच है। एयरफोर्स तो खुद एयर वॉरियर हैं, अब नेवी का एक अलग से एविएशन का ब्रांच है और आर्मी का एक अलग से आपको एविएशन का ब्रांच देखने को मिल जाएगा। तो इस केस में जो आर्मी के जो एविएशन का ब्रांच है उसका फर्स्ट कॉम्बैट पायलट किन्हें बनाया गया है। योर आंसर इज अभिलाषा बराक, सी इज कैप्टन इन इंडियन आर्मी। सो कैप्टन अभिलाषा बराक इज द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट ऑफ इंडियन आर्मी। ये आपका आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको NDA के एग्जाम या फिर CDS एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप ये क्वेश्चन को अच्छे से एक नोटबुक में मेंशन कर लें। अब जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप एक नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें और उसको नोट किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं लिमिटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब एक मंथ में 30 दिन है, 30 दिन का ये जो लिमिटेड करंट अफेयर्स वही बता रहा हूँ। और अगर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं होने वाला है। तो आप बेसिकली जब आप सुन रहे हैं तो साथ साथ आप नोट डाउन भी किए जाएं, ताकि आपको जब आप रिवाइज करेंगे एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे अगर आप ये वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आई होप आपका सारा जो आपको दोबारा रिवाइज करना भी नहीं पड़ेगा और नहीं तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। सेम वीडियो को 2 से 3 बार 2x पे या फिर 1.5x पे देख लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल श्री रामायणा यात्रा ट्रेन विल बी लॉन्च्ड। सो जो आपका श्री रामायणा यात्रा का ट्रेन है ये आपको 21 जून को लॉन्च किया गया था और जो 21 जून है इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे और साथ साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये 2 म्यूजिक डे एंड योगा डे दोनों 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है।
और आपको इस वीडियो में आपको बताना है कि वर्ल्ड योगा डे का थीम क्या था। सो जो वर्ल्ड योगा डे का थीम था, देन दैट थीम वाज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए या फिर सीडीएस में देखने को मिल सकता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2022, ये आपको देखने को मिल सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज होस्टिंग इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। ये जो फेस्टिवल है इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, भारत ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? देन दैट पर्टिकुलर प्लेस नेम इज न्यू दिल्ली, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका कंप्लीट नाम आपको याद रखना है, भारत ड्रोन महोत्सव उस फेस्टिवल का नाम है जो कि आपको न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का एक ऐसा ड्रोन जो कि ह्यूमन को भी कैरी कर सकता है। एक्चुअली जो पहले ड्रोन था, ड्रोन जो वेपन होते हैं, मिसाइल होते हैं, इसको कैरी करने के लिए लिया जाता था, या फिर सर्वाइलेंस को जो सर्वाइलेंस रखते हैं एनिमी की टेरिटरी पे, उस पर यूज करने के लिए ड्रोन का यूज किया जाता था। लेकिन अब से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नए ड्रोन का उद्घाटन किया है, उस ड्रोन का नाम आपको बताना है जो कि एक ह्यूमन को भी कैरी कर सकता है। बेसिकली द आंसर ऑफ दैट ड्रोन नेम इज़ वरुण। ये भी आपको याद रखना है, वरुणा इज़ द नेम ऑफ द ड्रोन। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको एनडीए या फिर सीडीएस दोनों में से कोई एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इस ड्रोन का नाम याद रख लेना। वरुणा इज़ द नेम ऑफ द ड्रोन विच कैन कैरी ह्यूमन एज वेल। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। What is the rank of India's men hockey team in FIH World Ranking 2022? FIH मतलब जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसमें इंडिया मेन हॉकी टीम का रैंकिंग क्या है 2022 में? तो जो मेन हॉकी टीम का रैंकिंग है वो 4th है और जो वुमेन हॉकी टीम का रैंकिंग है वो 6th है। अब देखिए जो इंटरनेशनल हॉकी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। ये फैक्ट्स आप एक अलग से नोटबुक में लिख सकते हैं। सो जो आपका इंटरनेशनल हॉकी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, ये आपको सबसे पहले इंडिया में देखने को मिलेगा। ये आपका इंडिया में होगा। इंडिया में भी 2 प्लेस में होगा। ये आपका कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो राउरकेला एक पर्टिकुलर प्लेस है यही उड़ीसा में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब राउरकेला में क्यों हो रहा है? क्योंकि राउरकेला में आपको इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी का स्टेडियम जो कि आपको राउरकेला में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि हॉकी का लार्जेस्ट स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है राउरकेला में। इसीलिए जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 2023 मतलब नेक्स्ट ईयर हॉकी का वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। और भुवनेश्वर में आपको कलिंगा स्टेडियम भी आपको देखने को मिलेगा जो कि हॉकी के लिए अभी जो एट प्रेजेंट है ये काफ़ी फेमस स्टेडियम है। जितने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं वो आपको अभी कलिंगा स्टेडियम में देखने को मिलेगा, लेकिन जब ये बिरसा मुंडा स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ और यहाँ दोनों प्लेस में आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये जो आपको इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जो आपका अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और एक हुआ था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। 2 गेम अभी फिलहाल कंडक्ट किया गया था। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था ये आपका कर्नाटका स्टेट में हुआ था, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था ये आपका ये हरियाणा स्टेट जो कि पंचकुला स्टेट में हुआ था। और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मिला था, ये फर्स्ट पोजीशन आपको जैन यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है, जैन यूनिवर्सिटी को फर्स्ट पोजीशन मिला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये हरियाणा स्टेट को ही फर्स्ट पोजीशन मिला और हरियाणा होस्ट किया था। अब यहाँ पर जो मैस्कॉट आपको खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कॉट और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट, आपको दोनों का मैस्कॉट का नाम इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि मैस्कॉट का नाम क्या है, ताकि आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एनडीए या फिर सीडीएस के एग्जामिनेशन में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट। विच स्टेट हैज़ वन द वर्ल्ड टोबैको अवार्ड 2022? वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2022 किस स्टेट को दिया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको इसीलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो अवार्ड मिला है ये वर्ल्ड टोबैको अवार्ड है। ये इंडिया का अवार्ड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल में अवार्ड है।
सो पूरे वर्ल्ड में नो टोबैको डे अवार्ड जो मिला है किस स्टेट को मिला है, देन दैट स्टेट इज स्टेट ऑफ झारखंड एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इज हेमंत सोरेन। ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड ए लाइफ बैन ऑन विच रेसलर आफ्टर थ्रैश्ड रेफरी जगबीर सिंह during the Commonwealth Games trials inside the KD Jadhav Hall at Indira Gandhi International Stadium। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये कौन से प्लेयर पर बैन लगा दिया गया है। ये जो प्लेयर का नाम है आपको सत्येंद्र मलिक एक रेसलर है इंडिया का, इन पे लाइफ टाइम बैन लग गया है। अब बैन क्यों लगा है, तो जब इनका मैच चल रहा था यही इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तब इन्होंने रेफरी को ही धो डाला। मतलब इन ओपोनेंट के अलावा, ओपोनेंट को तो पीट ही रहे थे, ओपोनेंट के साथ तो कुश्ती खेल ही रहे थे, और साथ साथ जो इनका रेफरी था, रेफरी के साथ भी कुश्ती खेलना स्टार्ट कर दिए। तो इसी को लेकर ये स्पोर्ट्स का वायलेशन हो गया। जब स्पोर्ट्स का वायलेशन हुआ तो इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। मतलब अब वे रेसलिंग अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं खेल सकते हैं। रेसलिंग क्या, ये कोई गेम नहीं खेल सकते हैं। मतलब स्पोर्ट्स अब इनके लिए एक तरह से कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो इनका नाम है सत्येंद्र मलिक। इनका नाम आपको याद रखना होगा, सत्येंद्र मलिक। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो आपको विवादों में जो आपको देखने को मिलता है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे हमेशा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, दोनों के बीच में हमेशा कुछ न कुछ विवाद तो चलता रहता है। सो हियर बेसिकली योर क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। जो आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इसका न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें बनाया गया है, देन दैट आंसर इज विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना का आपको नाम पता होना चाहिए। सो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले जो आपको खादी ग्रामोद्योग आयोग है, आपको जो खादी ग्रामोद्योग आयोग, ये जो एक संस्था है, इसके पहले हेड थे विनय कुमार सक्सेना। अब इनको इस हेड से हटा दिया गया है और इनके प्लेस पे मनोज कुमार को नया हेड नियुक्त कर दिया गया है खादी ग्रामोद्योग आयोग का। और ये जो विनय कुमार सक्सेना है, अब इनको बना दिया गया है दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑनर्ड इंडियाज 1 मिलियन आशा वर्कर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल हेल्थ। तो इंडिया ने जो आशा वर्कर है, ये आशा वर्कर को WHO ने रिकॉग्नाइज किया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ। और ये जो अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड क्योंकि कोविड-19 में आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड महामारी से जूझ रहा था, और इस समय जो गांव-गांव तक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रहा है, गांव-गांव तक कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है, उस कोविड के वैक्सीनेशन में आशा वर्कर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी रोल को देखते हुए जो वर्ल्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन का जो अवार्ड दिया गया है WHO के द्वारा आशा वर्कर को, ये आपको पता होना चाहिए। अब यही हेल्थ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे आपको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, देन दैट आंसर इज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 था, इसका थीम क्या था। इसका थीम आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 था, इसका थीम क्या था। ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। Moving over to the next question. Next question is India recorded the highest ever annual inflow of FDI of how many billion dollar in the financial year 2021-2022। मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया ने कितने FDI अपने कंट्री में इनफ्लो देखा है, मतलब कितना FDI अपने कंट्री में आया है। देन दैट एग्जैक्ट अमाउंट इज 83.57 बिलियन डॉलर। 83.57 बिलियन डॉलर का जो FDI होता है, FDI हमारे कंट्री में आया है। अब यहाँ पे FDI से रिलेटेड कुछ मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ। FDI एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका FII, दैट इज़ आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में अंतर क्या है, मान के चलिए एक फॉरेन कंपनी कोई इंडियन कंपनी का कोई स्टेक खरीद रहा है, तो स्टेक खरीदने वक्त अगर कोई इंडियन कंपनी का 10% या फिर इससे कम 10% या फिर इससे कम स्टेक खरीद रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल, देन एक्चुअली दैट कंपनी इज नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया।
वो कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी, वो कंपनी आएगी आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में। और ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब इसमें कंपनी कभी भी उठ के जा सकती है, कभी भी आ सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वही अगर कोई कंपनी कोई भारत की कंपनी में या फिर भारत में अपना 10% स्टेक इन्वेस्ट कर रहा है या फिर 10% से ज़्यादा का स्टेक इन्वेस्ट कर रहा है, देन दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये हमेशा कोई कंट्री के बेनिफिट में होता है जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसी पक्ष में देखते हुए इस बार इंडिया में $83.57 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा गया है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन भी वही FDI से रिलेटेड है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है विच इंडियन स्टेट वाज टॉप रिसिपिएंट ऑफ FDI इक्विटी इनफ्लोज इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 शेयर ऑफ 38% फॉलोड बाय महाराष्ट्र विद 26% एंड दिल्ली विद 14%। मतलब जो FDI आया है यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा FDI देखने को मिला है। देन दैट स्टेट इज ऑब्वियसली द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका इन्वेस्टमेंट है FDI देखने को मिला है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जितने सारे IT से वर्क होते हैं, IT प्रोफेशनल्स, IT कंपनी, आपका इन्फोसिस का हेडक्वार्टर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, इसरो का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। मतलब जितने सारे इंडिया में IT कंपनीज़ हैं या फिर जो फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती है वो मैक्सिमम बेंगलोर में इन्वेस्ट करती है, इसीलिए हम इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यहीं पे सबसे ज़्यादा FDI देखा गया था 2021-22 में। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्लेस तो आपका कर्नाटका का था और सेकंड प्लेस महाराष्ट्र, थर्ड प्लेस दिल्ली जो कि आपका कैपिटल सिटी है, दिल्ली में थर्ड हाईएस्ट FDI आपके इंडियन के स्टेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ आपका जो कश्मीर फाइल मूवी आया था उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर एंड चीफ of the banned Jammu and Kashmir Liberation Front JKLF who has been sentenced to lifetime imprisonment in terror funding case by National Investigation Agency। ये एजेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एजेंसी फिलहाल बहुत न्यूज़ में रहा है, इसीलिए इससे क्वेश्चन देखने को बन सकता है। कोर्ट इन दिल्ली। सो वो कौन सा एक सेपरेटिस्ट लीडर है जिनको लाइफ टाइम सेंटेंस दे दिया गया है? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड है, देन ही इज़ नन अदर देन यासीन मलिक। अगर आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखा होगा तो जो कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीरी हिंदुओं को जो मरवाता है, जो उनका अत्याचार करवाता है, उनके पीछे इसी का हाथ होता है, यासीन मलिक का। अब यहाँ पे मैं NIA के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। जब हमारे इंडिया में 26/11 का हमला हुआ था, 26/11 का हमला हुआ था, तो उस समय इसी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो आपका इंडिया है एक लेजिस्लेशन पास किया गया, वो लेजिस्लेशन था NIA एक्ट, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। अब इसका मेन काम है कि जो हमारे कंट्री में जितने सारे टेररिज्म हो रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे हैं, इसको देखभाल करना, इसको सर्वाइलेंस में रखना, इस पर कड़ी कार्रवाई करना, इसको एक तरह से इस पे जो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है इसको कंटिन्यू करना, ये NIA के हाथ में रहता है। इसीलिए आप NIA को एक बार पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ देना कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। इसके साथ साथ ये इसका जो मैक्सिमम एज क्या है, इस टाइप से आप इसको देख लेना, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्योंकि जो अभी जो उदयपुर में जो घटना हुआ था वहाँ पे भी NIA का इन्वॉल्वमेंट आपको देखा गया है, क्योंकि NIA को ही वो केस सौंप दिया गया था। इसीलिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसीलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। Which Indian boxer won gold medal in 52 kg category at the वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022? जो आपका वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, यहाँ पे गोल्ड मेडल किसे मिला? जो कि आपको 52 kg कैटेगरी में फाइट की थी। देन शी वाज नन अदर देन निखत जरीन। निखत जरीन इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपका तेलंगाना में हुआ था, और ये सेम निखत जरीन वही है जो इस बार कॉमनवेल्थ में भी 48 से 50 kg वाले कैटेगरी में गोल्ड मेडल फिर से इनको मिला है। सो इनको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन इससे और जो फ्रेम होगा
कि ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी थी ये किस कैटेगरी में बनी थी, 52 केजी कैटेगरी में, लेकिन जो कॉमनवेल्थ जीती है ये 48 से 50 केजी वाले कैटेगरी में जीती है। और ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था ये किस प्लेस में हुआ था, तो ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था ये आपको इस्तांबुल या फिर तुर्की, इस्तांबुल एक प्लेस का नाम है जो कि तुर्की कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, वही इस्तांबुल ने इस इवेंट को होस्ट किया था, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाउ मेनी मेडल इंडिया वन एट डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक अभी फिलहाल ब्राज़ील में हुआ था, तो उसमें इंडिया ने टोटल 16 मेडल जीता है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आरसीबी प्लेयर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अनकैप्ड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल टू स्कोर ए सेंचुरी इन द प्ले ऑफ ऑन 25th of May 2022। सो इनका नाम था राजेत पतिदर। अगर आपने आईपीएल को फॉलो किया होगा तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आईपीएल से आपको क्वेश्चन वही बनेगा, आपका ऑरेंज कैप, कौन आईपीएल जीता, आपका आईपीएल का फाइनल मैच कहाँ हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले ही कवर करवा दिया हूँ इसी सीरीज़ में। जो आपका फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे वो आपको आईपीएल से रिलेटेड ही देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, विच क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन हैज़ बीन सेंटेंस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू 1 year imprisonment in a 3-decade old road rage case in which a person has died। सो यहाँ पे जो पॉलिटिशियन का नाम था नवजोत सिंह सिद्धू को अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सो ये आपको देखने को मिल सकता है, आप इसे याद रखना। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, India has banned the export of which food grain in effort to control the rising prices। अभी आपने रसिया यूक्रेन का जो अभी वार हुआ था उसमें वीट को लेकर काफ़ी क्राइसिस चल रही थी, फूड क्राइसिस काफ़ी सारे कंट्री में, जैसे कि आपका इजिप्ट में, आपका तुर्की में फूड क्राइसिस चल रही थी, क्योंकि ये जो इजिप्ट और तुर्की है ये अपने अधिकतर वीट, मतलब मोर देन 50% ऑफ देयर वीट दे इम्पोर्ट फ्रॉम यूक्रेन एंड रसिया। और जब यूक्रेन और रसिया दोनों वार में इन्वॉल्व है तो इस केस में इनके पास वीट कहाँ आएगी, तो उसी के नज़र में रखते हुए इंडिया ने अपने वीट एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया ताकि इसका प्राइस कंट्रोल में आ जाए, इसका प्राइस बढ़े ना, इन्फ्लेशन ना हो। तो वो था वीट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the name of third ship of Project 17A which was launched by Defense Minister राजनाथ सिंह। सो आपको यहाँ पे शिप का नाम बताना है, दैट वाज INS उदयगिरी। INS उदयगिरी द नेम ऑफ द शिप, जो कि आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इस बार जो CAPF का एग्ज़ाम हुआ था आपका 7 अगस्त, मतलब 2-3 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक INS संकल्प से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आपके CDS के एग्जाम में भी INS उदयगिरी या फिर कोई और INS से क्वेश्चन आने की संभावना आपको देखने को मिल सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर which is the fourth and last ship of Indian Navy, that is 7400 ton project of 15B destroyer। तो यहाँ पे आपका नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा INS सूरत। ये INS सूरत और INS उदयगिरी दोनों का नाम आपको याद रखना है। INS उदयगिरी आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, और ये जो आपका INS सूरत है ये आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि 4th और लास्ट शिप ऑफ इंडियन नेवी 7400 टन प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर है। ये डिस्ट्रॉयर है और ये आपको शिप है, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑन विच डे नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। सो नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? सो नेशनल डेंगू डे आपको 16th May एवरी ईयर मनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन मेन बैडमिंटन टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन द थॉमस कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर विथ अ स्टनिंग विन ऑफ 3-0 इन द फाइनल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने लगभग 13 साल के बाद, इंडिया ने कई सालों के बाद ये जो आपका थॉमस कप हुआ था ये जीता है, और इसमें इंडोनेशिया को हराया है, जो कि 13 बार चैंपियनशिप रह चुका है इसी थॉमस कप में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। सो त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिड्यूस्ड द कोविड बूस्टर डोज टाइम गैप टू हाउ मेनी मंथ फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जो बूस्टर डोज है इसे अब 3 मंथ कर दिया गया है। सो आप 3 मंथ के अंदर ही ये बूस्टर डोज ले सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल में कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो। ये क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड है।
Next question is, which Indian organization has developed the Swati weapon locating radar? Very much important. Swati weapon locating radar, WLRS, जो कि आपका वेपन लोकेटिंग रडार ये हो गया स्वाति. विच इंडियन आर्मी इज प्लानिंग टू एक्वायर एट अ कॉस्ट ऑफ 950 करोड़. सो ये आपका DRDO है जो कि आपका स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को डेवलप कर रहा है और ये इंडियन आर्मी में शामिल हो जाएगा और इसका डील है 950 करोड़ रुपीज़ के साथ. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट. अभी नीति आयोग और इलेक्शन कमीशन दोनों को लेकर कुछ चेंजेस आए हैं आपके इनके जो पोस्ट होते हैं इसमें, तो ये आपको देखने को मिल सकता है. So who took charge as the 25th Chief Election Commissioner of India? None other than राजीव कुमार. very much important. और जो आपके नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं ये आपको सुमन बेरी को बनाया गया है. सुमन बेरी ये नाम आपको पता होना चाहिए. और जो नीति आयोग के CEO हैं, नीति आयोग के CEO, इन्हें जो नियुक्त किया गया है ये हैं आपके परमेश्वर अय्यर. दोनों का नाम आपको मालूम होना चाहिए. परमेश्वर अय्यर हो गए हैं आपके CEO और इसके बाद सुमन बेरी आपके हो गए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आपका राजीव कुमार हैं. ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड? नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11th ऑफ मे, क्योंकि इसी दिन हमने 1998 में अपना पोखरण का जो टेस्ट किया था, वो पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था 11th ऑफ मे को, इसीलिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11th ऑफ मे को. ये डेट आपको पता होना चाहिए. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेजेंडरी संतूर प्लेयर हु पास्ड अवे ऑन May 10, 2022 एट द एज ऑफ 84. तो जो संतूर प्लेयर जो अभी फिलहाल उनका निधन हो गया, उनका नाम है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा. ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके NDA एग्जाम जो आपका NDA 1 2022 हुआ था, इसमें आपको देखने को मिला था पंडित बिरजू महाराज. पंडित बिरजू महाराज किस स्टेट से रिलेटेड है, ये आपको एग्जाम में आया था आपके NDA 1 2022 में. इस बार पंडित शिव कुमार शर्मा को लेकर आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ये संतूर वादक हैं, मतलब संतूर के प्लेयर हैं, संतूर बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा. Moving over to the next question, in which Indian state at least 82 children below the age of 5 years has been suffering from a rare kind of viral infection called tomato flu or tomato fever? So it is none other than a state of Kerala. State of Kerala में कुछ चिल्ड्रेन जो आपको टोमेटो फीवर या फिर उसको टोमेटो फ्लू भी बोला जाता है, इससे देखा गया है कि ये लोग सफ़र कर रहे हैं. अब आपको बताना है कि इंडिया में सबसे फर्स्ट कोविड-19 केस कहाँ पे देखा गया और इंडिया में सबसे फर्स्ट आपका मंकी पॉक्स का केस कहाँ पे देखा गया और आपको इंडिया में सबसे फर्स्ट टोमेटो फीवर का केस कहाँ देखा गया. सो तीनों का आंसर आपका केरला हो जाएगा. फर्स्ट टोमेटो केस, फर्स्ट कोविड-19, फर्स्ट मंकी पॉक्स, तीनों का फर्स्ट केस आपके इंडिया में केरला में देखा गया. बहुत इंपॉर्टेंट केरला है. केरला आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलहाल अभी न्यूज़ में था क्योंकि अभी केरला में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस होते हैं, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन जो कि स्टेट ऑफ केरला में हुए हैं, 61 सेशन आपको केरला में देखने को मिला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको ये भी देखने को मिल सकता है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर टू स्केल 5 पीक अबव 8000 मीटर. सी इज नन अदर दैन प्रियंका मोहिते और इनको तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है. तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड 2022 प्रियंका मोहिते. और ये जो लास्ट में जो पीक क्लाइंब की थी, इनका लास्ट पीक था कंचनजंगा पीक, जो कि आपका सिक्किम में देखने को मिल जाएगा. जैसे वे कंचनजंगा पीक कंप्लाइन की, तो पीक क्लाइंब करने के बाद सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर टू स्केल 5 पीक्स अबव 8000 मीटर. और इसी अचीवमेंट को देखकर इनको तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया 2022 के लिए. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज GST कलेक्शन टच्ड ऑन ऑल हाई टाइम ऑफ रुपीज़ हाउ मच लाख करोड़ इन अप्रैल 2022. सो अप्रैल 2022 में आपका जो इंडिया का GST कलेक्शन है 1.68 लाख करोड़, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है. GST का कलेक्शन यहाँ तक टच हो गया है. ये भी आपसे देखने को मिल जाएगा कि किस मंथ में इंडिया ने सबसे हाईएस्ट GST कलेक्शन दर्ज किया है. वो आपका अप्रैल 2022 और जो अमाउंट है आपका 1.68 लाख करोड़ रुपीज़. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज
नारायण राणे inaugurated the India's first center of excellence for खादी at the National Institute of Fashion Technology. So इंडिया का फर्स्ट खादी सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया है? देन इट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली में आपको ओपन किया गया है बाई नारायण राणे, जो कि अभी फिलहाल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर हैं। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम द इंडियन डिस्कस थ्रो प्लेयर हु has been provisionally suspended by the athletics integrity unit after testing positive for drug case। अभी फिलहाल जो ड्रग का केस होता है, इसमें कमलप्रीत कौर को पॉजिटिव टेस्ट किया गया था, इसीलिए इनको अभी कुछ समय के लिए बैन किया गया है। मतलब इनको अभी कुछ समय के लिए एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है बाई एथलेटिक इंटेग्रिटी यूनियन। ये जो यूनियन का नाम है इसको पता होना चाहिए। वो कौन सी प्लेयर है? देन सी इज नन अदर देन कमलप्रीत कौर, जो कि डिस्कस थ्रो के प्लेयर हैं। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। विच कंट्री होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट 2022? इट इज़ कंट्री ऑफ डेनमार्क, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड किए थे इंडिया नॉर्डिक समिट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सिरुई लिली फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 25 to 28 ऑफ May 2022? तो सिरुई लिली फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फेस्टिवल होता है अलग अलग स्टेट का अपना कुछ फेस्टिवल होता है, वो फेस्टिवल आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे जो सिरुई लिली फेस्टिवल है, सिरुई लिली फेस्टिवल को मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया था। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द renowned Sanskrit grammarian, linguistic and recipient of Padma Shri who passed away on 12th of May 2022. He was popularly known as भगीरथ शास्त्री। सो इनका जो नाम है भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी, जो कि फिलहाल इनका निधन हो गया ऑन 12th of May 2022, और इनको पद्मश्री 2018 में दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी कौन थे? सो ही वॉज अ रेनॉल्ड संस्कृत ग्रामेरियन एंड लिंग्विस्ट। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। संस्कृत के ग्रामर के एक अच्छे विद्वान थे और एक लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मतलब होता है कि जिनको कई सारे भाषाओं का ज्ञान हो, वो होते हैं लिंग्विस्ट। Moving over to the next question, RBI hiked the policy repo rate by how much basis point to 4.40% in the month of May? तो RBI ने फिलहाल अभी 40 बेसिस पॉइंट से इस जो आपका रेपो रेट है, रेपो रेट को बढ़ा दिया है। अब आपका रेपो रेट हो गया 4.9, लेकिन फिलहाल कुछ दिन पहले ने RBI फिर से 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया है। सो फिलहाल जो प्रेजेंट जो अभी करंट का रेपो रेट है आरबीआई के द्वारा, ये आपका 5.4% आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आप इस डेटा का यूज अपने ग्रुप डिस्कशन में भी कर सकते हैं। 5.4% अभी फिलहाल इंडिया का रेपो रेट हो गया है। अब आपको इसको वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि रेपो रेट कौन चार्ज करता है और रिवर्स रेपो रेट कौन चार्ज करता है, और क्या रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा हो सकता है। इसके बारे में आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ नेशनल करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स। विच टीम वन द संतोष ट्रॉफी 2021-22 बाई डिफीटिंग वेस्ट बंगाल इन द फाइनल? सो संतोष ट्रॉफी जो फिलहाल हुआ था वो किसने जीता है? देन इट इज द स्टेट ऑफ केरला विच डिफीटेड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द फाइनल मैच ऑफ संतोष ट्रॉफी। सो केरला जीत गया है बाई डिफीटिंग वेस्ट बंगाल इन द संतोष ट्रॉफी 2021-22। ये आपको पता होना चाहिए, गारंटीड। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके सीडीएस या फिर एनडीए के एग्जामिनेशन में। With this we have completed the national events and current affairs, and now we are going to touch upon international events and current affairs. Both national and international are of great importance. Here I have selected only a few questions, not all the questions from the month, but only a few questions which I have felt that it is of great importance, and those questions can directly appear in your examination. So those questions are very very much important. सो अब हम आ गए हैं इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ऑन विच डे वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 ऑफ मे। और अभी अभी आपने पढ़ा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किस स्टेट को दिया गया? देन इट इज द स्टेट ऑफ झारखंड, जिसे वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड किस दिन दिया गया? 31 ऑफ मे को दिया गया। क्यों इस दिन दिया गया? बिकॉज ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड नो टोबैको डे। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछ सकता है।
मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी आपको देखने को मिला है। अभी आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था कुछ महीने पहले, फिर आपका वेस्ट बंगाल पीसीएस का एग्जाम हुआ था कुछ महीने पहले। इन दोनों पीसीएस के एग्जाम में, जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है, इन दोनों एग्जाम में जो प्रमुख कंट्रीज में रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इसीलिए जो आपका सीडीएस का एग्जाम आने वाला है, इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। So who has been sworn in as the Australia's 31st Prime Minister? So ऑस्ट्रेलिया का 31st प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया है? एंथनी अल्बनीज। और ये एंथनी अल्बनीज ही हैं जो कि आपको जो क्वाड का समिट हुआ था जापान में, यहीं अटेंड किए थे ऑस्ट्रेलिया के तरफ से। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि जो क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर दी है। फिलहाल जो 2022 का एक्सरसाइज हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। Moving over to the next question, which country has decided to lower the amount of foreign currency that individual can hold to $10,000 from $15,000 in the mid of, that means amid the country's worst economic crisis? तो आपको इसका आंसर तो आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि अभी कौन से कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। Then it is the state of श्रीलंका। श्रीलंका, कंट्री ऑफ श्रीलंका, जो आपका श्रीलंका है, अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, श्रीलंका के पास अभी $51 बिलियन का कर्जा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, मोर देन अराउंड, जब आप इसको इंडियन रुपये में देखेंगे तो आपको $51 बिलियन को 8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आएगा, लगभग 408 लाख करोड़ का भी कर्जा आपको इस श्रीलंका के पास देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट जो पूरे वर्ल्ड से लिया है। और इस $51 बिलियन में से 7 से 8 बिलियन कर्जा कंप्लीटली सिर्फ चाइना से ही लिया है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो हम्बनटोटा का जो पोर्ट है, ये क्यों 99 ईयर ऑफ लीज टू चाइना दिया गया है, क्योंकि इसने इतना कर्ज ले चुका है, वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो अब उसने अपना पोर्ट लीज पे दे दिया है 99 ईयर्स के लिए। हालांकि वो 99 ईयर्स वाला जो लीज है उसे रिड्यूस करके अब 40 ईयर्स तक कर दिया गया है, लेकिन वो अब चाइना के अभी कंट्रोल में है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड डेफ ओलंपिक 2021? ये मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया कि जो ये डेफ ओलंपिक 2021 हुआ था, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते? सो टोटल 16 मेडल। और ये आपका कंट्री ऑफ ब्राज़ील, जो कि आपका ब्राज़ील जो कि आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ पे आपको देखने को मिला था। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यू अपॉइंटमेंट्स, हु हैज़ बिकम द फ्रांस फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 30 ईयर्स? फ्रांस के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर 30 साल में किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सी इज नन अदर देन एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन 30 ईयर्स, जो कि आपका फीमेल है, फर्स्ट हु हैज़ बिकम द फ्रांस फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 30 ईयर्स। पिछले 30 साल में फ्रांस के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर आपके एलिजाबेथ बॉर्न को बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिबान हैज साइंड अ डील विद विच कंट्री टू रन द एयरपोर्ट इन अफगानिस्तान? सो तालिबान ने यूएई के साथ एक डील साइन किया है, यहाँ पे अपना एयरपोर्ट को रन कर सकते हैं। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन द थॉमस कप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? इंडोनेशिया। मैंने आपको बताया कि इस बार इंडिया जीत गया, लेकिन इंडोनेशिया पिछले से 13 बार ऑलरेडी जीत चुका है, जो कि अभी तक का मैक्सिमम है। सो इंडोनेशिया मैक्सिमम नंबर ऑफ थॉमस कप जीत चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? सो अभी श्रीलंका का न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी चेंज कर दिया गया है। उस समय रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया था, लेकिन फिलहाल रानिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैं। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि फिलहाल श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर किन्हें बनाया गया है, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड टर्टल डे? वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? सो 23rd ऑफ मे को वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है।
और इसी 23 मई 1931 को आपको पता है क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था और इसी दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सो इंडिया में शहीद दिवस 23 डे को मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में 23 डे आपको वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, विच कंट्री होस्टेड द थॉमस एंड उबेर कप 2022? जो आपका थॉमस कप और उबेर कप 2022 हुआ था, ये किस कंट्री ने होस्ट किया? इट इज द कंट्री ऑफ थाईलैंड। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has become the first in the world to make 21 days quarantine compulsory for the monkeypox patient? Very very much important। ये आपको देखने को मिल जाएगा 21 दिन का क्वारंटाइन। आपको ये कोरोना में 14 दिन का क्वारंटाइन, लेकिन आपको मंकी पॉक्स में 21 दिन का क्वारंटाइन। कंट्री ऑफ बेल्जियम ने अभी फिलहाल डिक्लेयर किया है कि 21 दिन का कंपलसरी क्वारंटाइन आपको मंकी पॉक्स के लिए होना है। अगर आपके पास मंकी पॉक्स है तो आपको 21 दिन का क्वारंटाइन बेल्जियम में आपको होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया के स्पेस मिशन से फिलहाल आपको पता है कि जो 2022 का स्पेस मिशन हमने आज़ादी सैट और आज़ादी सैट के साथ साथ EOS 02 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 दोनों लॉन्च किया, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। सो यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, What is the name of India's first Venus mission which is expected to be launched in 2024? 2024 में हम फर्स्ट वीनस मिशन लॉन्च करने वाले हैं, उसका नाम आपको शुक्रायन 1 आपका इंडिया के फर्स्ट वीनस मिशन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, विच कंट्री ब्लॉक्ड द मूव टू फास्ट ट्रैक फिनलैंड एंड स्वीडन बिड्स टू ज्वाइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाटो? तो फिलहाल ये तुर्की कुछ समय के लिए ब्लॉक किया था, लेकिन अभी तुर्की के ब्लॉक करने से कोई फ़ायदा न हुआ। फिर तुर्की ने अमेरिका के प्रेशर में आकर इस ब्लॉक को रिजेक्ट कर लिया और फिलहाल फिनलैंड और स्वीडन दोनों नाटो ज्वाइन करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिनलैंड और स्वीडन, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि फिलहाल जो अभी आपका CAPF का एग्जाम हुआ था, जो आपका 7 अगस्त को CAPF का एग्जाम हुआ, उनमें से पूछ दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ नाटो कंट्री। तो इस केस में आपको जो अगला एग्जाम होने वाला है CDS में, इसमें पूछ सकता है कि ये जो दो कंट्रीज हैं फिनलैंड और स्वीडन, इनको अभी नाटो में शामिल कर लिया गया है कंप्लीट, मतलब ये जो घोषणा हो गई है शामिल हो जाएगी, अब 1 से 2 महीने में शामिल हो जाएगी। यहाँ पे अब तुर्की जो ब्लॉक किया था, ये US के प्रेशर में आके फिर से इसे अनब्लॉक कर दिया और फिनलैंड और स्वीडन दोनों नाटो में ज्वाइन करने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, व्हेन इज वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व ऑन 20 मई और नाटो से रिलेटेड नाटो में टोटली अभी 30 कंट्रीज़ हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको ब्रुसेल्स, जो आपका बेल्जियम का कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा नाटो का हेडक्वार्टर। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ UAE हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73 ऑन May 13, 2022। सो UAE के प्रेसिडेंट कौन है जिनका अभी फिलहाल में 73 साल की उम्र में निधन हो गया? देन ही इज़ नन अदर देन शेख खलीफा बिन जयाद अल नयान। अब आपको सिंपली बस याद रखना है शेख खलीफा UAE के प्रेसिडेंट थे जिनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। Moving over to the next question, which media organization was awarded the Pulitzer Prize to 2022 in the public service category? Very very much important। ये पुलित्जर प्राइज़ आपका जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, पुलित्जर प्राइज़। सो अभी फिलहाल वाशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका का एक न्यूज़ एजेंसी है, इसको दिया गया था पुलित्जर प्राइज़ 2022 इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द फर्स्ट लूनार एक्लिप्स ऑफ 2022 टुक प्लेस? जो लूनार एक्लिप्स का फर्स्ट डे किस दिन हुआ था? ये आपका 15 to 16 मई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टीम कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज ODI टीम एंड T20 टीम? सो यहाँ पे आपका आंसर है निकोलस पूरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ ODI एंड T20 टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 ऑन May 12, 2022? सो जो फर्स्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया में देखा गया था, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सॉ इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया यून सुक योल। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, फिलहाल न्यूज़ में था। और साउथ कोरिया ने कम्प्लीटली इस बार नॉर्थ कोरिया के खिलाफ है, प्लस साथ साथ चाइना के भी खिलाफ है। इनका जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के आइडियोलॉजी से थोड़ा सा मिलता है, जो कि चाइना के कंप्लीट खिलाफ है। यून सुक योल, इनका आपको नाम पता होना चाहिए, साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट। लास्ट 3 क्वेश्चन, जो आपका लास्ट 3rd क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑलराउंडर हु पास्ड अवे ऑन 14 मई 2022। उनका नाम आपका एंड्रयू साइमंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। इनका अभी फिलहाल निधन हो गया था। फिलहाल 2 से 3 क्रिकेटर का निधन हुआ है। आपको उन 2-3 का नाम इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। एक का नाम आपको एंड्रयू साइमंड्स हो गया, एक का नाम आपका हो गया है शेन वॉर्न का भी फिलहाल निधन हो गया था। और आपको एक और क्रिकेटर का नाम बताना है जिनका फिलहाल में निधन हुआ है। आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, नेम द माउंटेनियर फ्रॉम नेपाल हु सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर असेंडिंग माउंट एवरेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बाई कॉन्क्यूरिंग इट 26 टाइम। 26 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। इनका नाम क्या है? कीमा रेता। ये जो पर्सनालिटी है, इन पर्सनालिटी का नाम है कीमा रेता, हु हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर 26 नंबर ऑफ टाइम, जो कि एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द NDA एंड CDS एग्जामिनेशन। ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज नेम द इंग्लिश प्लेयर हु वन 2022 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग जुड ट्रम्प इन द फाइनल। सो जो आपका स्नूकर का चैंपियनशिप हुआ था, इसका विनर कौन है? देन ही इज नन अदर देन रोनी सुलिवन। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, रोनी सुलिवन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड नेशनल करंट अफेयर्स। और आज आपका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का कंप्लीट हो गया। कल मैं पार्ट 3 लाऊंगा। पार्ट 3 में आपको जुलाई मंथ का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पार्ट 4 में फिर आपको जून मंथ का देखने को मिलेगा। फिर पार्ट 5 में आपको अगस्त मंथ का देखने को मिलेगा। इसी लेकर आपको मैं कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करवा दूंगा। और मैं आपको जानकारी के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये करंट अफेयर सीरीज पे कमांड कर लेते हैं, आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको एग्जाम तक याद रहने वाला है। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको NDA के एडमिट कार्ड और CDS के एडमिट कार्ड को लेकर भी वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़, बाय बाय।